Recording button is on. Sir, started. Okay. So first of all, we will be recording this session so that people who have missed, this kind of session can always go through it a little later. The intention here is, as I think mentioned last time also, just 1 minute. This group training is intended to be much better than the individual training, I feel, as it gives more insight to the subject. Because sometimes what happens, when we are training individually, and if people may not ask some questions, and probably we also forget. So here it will be like collective question and collective answer. So that will be one aspect of it. That is why we thought of doing it. And what we will do is, we will not discuss anything related to internal confidentiality. For example, suppose one broker is following some particular method. We will not discuss. We can take it offline. The purpose here is to have familiarity with our software, our concept, our terminology, and we have mix of clients. Few customers are purely a new customer, and 2-3 customers are belonging to our upgrade. That is, they use our older version, and now they are upgrading it to iBits. Correct. So before I start, just taking a light attendance, just to know which people are present. And Ashish, can I share my screen for 1 minute? Sir, you are Tame co-host show. Can you see my notepad? Yes, sir. See, next time when you just request to all the participants, next time when you log in with your initial name and company name. So at least we know people who are joining, Example, correct. So let me just ask which organizations are present. Mithul Bhai is there from Okta FX. Then is there anyone present from Marwadi Chandarana, the new card? Ashish, who is the person there? Subhash. So is any member joined from them? That side? Yes, sir. Please Yes, sir. Unmute and tell, give me your attendance. I am taking it as a attendance. Then anybody from Vimal and Sons? Hello. Yeah. That's here from Vimal and Sons. Yes. Oracle. Just mute them, Ashish. I'm just speaking name Oracle. Just anyone from Oracle, if they are present, just tell me. Oracle, then Define Edge. Smitesh Yes, by Amit is there. Okay, sir. Define it. Then Oracle, anyone is there, Ashish? No, sir. Okay. Then Smitesh by and team. I don't remember his company name, but right now, if anybody from Lincoln Business Park, Smitesh by. Yes, I am present. Okay, good. Very good. Then Avendas team and Spark team. Not yet. Yes. Yes, sir. Present. Present from Mehboob. Spark. Avendas se Ashish. Aventus, no one is there. Only Aarti and Mehboob is there from Spark. Okay. No, and Nitya here from Spark. Okay. So Aarti, it is your duty to teach Avendas people. Sir, Aventus is there. Senthil, the name, and So next time we will not take attendance. Next time just request everyone to write what you see on screen. Like your individual names followed by a slash and then the company, short name of the company. Then Antique, JM and Daulat. Batliwala. Managed by is And Nishit SPA, Ashish. might be he have work in morning, may not join. It's okay. Correct. So anyway, we will start. First and foremost, then Ashish, you can share your screen now. So please log in next time with the way I explained. You can share your screen. Now, first and fundamental,
request to all these people, new customer as well as the existing customer, please don't use this forum for any other matter, not even sharing your confidential information, and please ensure this is just used for getting insight and maybe helping each other in terms of only subject which is relevant, you know. Please don't tell me कि मुझे job इधर चाहिए etc. Please don't do that because the purpose will be defeated otherwise. This will be purely a common training which we feel, you know, कि this will be better. Like when we used to give training to individual customer, but a group of entire team, maybe 15-20 in past, that was helpful because each people will ask some question. Based on that, probably we deviate our workflow. So that is the whole purpose of entire session. And anyway, as I said, we will be recording this session. So now what we will do is, Ashish, you can share your screen. You know, Sandeep from our team, Sandeep bhai will be there. Ashish, Gaurav, Bhaskar bhai, Sunil Madhvi, and who else left? Pratik is there. So most of you are already interacting with them. For new people, just giving introduction. Sandeep, Ashish, Bhaskar bhai, and Hemendra bhai. Gaurav, Hemendra bhai, Gaurav. Pratik. They are present from our team, correct? So Sandeep bhai will take you through the program overview, and then individual member, any of our team member will teach a particular topic. What we will do is, usually we will keep this training from 11 to 12:30 because we also don't want your existing work to be disturbed. So we will keep it little short, and at the end we will decide mostly next day again same 11 to 12:30, correct? So we may decide which subject we are going to take, but anyway we'll go slowly. We don't mind in taking multiple session or more session if required, and whatever we show you, just understand that as it is. As far as any suggestions are concerned, so please take it offline because the purpose should not be deviated. You know, purpose is purely a training. So if you feel minor suggestions, obviously you can. Otherwise, if you feel something which you have not understood, you can always ask. That is not an issue. But when example I am telling, suppose a person from our team is explaining brokerage. So whatever we show you brokerage of cash market, F&O or currency, that they will explain. But something called example order-wise brokerage or some other kind of brokerage which is little different, you know, then we will take it offline because there are a lot of questions when a person says no order-wise brokerage. So we will not deviate that later on. And you can note down all these questions. And if you want, we will address it maybe at the end or after 2, 3, 4 sessions also. That is not an issue, right? Now, I am just giving brief introduction of our entire architecture. Our software, there is one program only, that is one EXE, which is IBITS equity EXE. And in that, we have developed a segment. So when we use the terminology of segment means cash market is one segment, or sometimes we call it as EQ, then F&O, currency, SLBM, MFSS, and commodity. All these are segments. Within each segment, we have exchanges. So many times you will find a word, we call it as CBE. So CBE is always, C stands for company, which is your individual company. B stands for book market type. That is a traditional word, probably has been used by since years, at least by Comtech. So book market type is nothing but your segment. It was earlier derived from NSE subject. So book market type, when we say CBE, company, book market, that is segment, and E for exchange. So suppose I want to download say cash market NSE trade. So we always say just select CBE of equity NSE. So that is the terminology. Second thing, for our existing customer who will be migrating from BITS to IBITS, or sometimes that process is going on, you might have even migrated also or whatever. So for them, right now we will not be using any multiple EXE what we used to do it earlier. Everything will be in one EXE, and we will you don't need to come out of any other module. Just use that module and log in with your credential, use it,
and then you can always do it runtime. So there will not be any multiple exe. Then there is a concept of CBE, which earlier we used to start exe of a case market or exe of F&O, and then we used to process multiple action. So here that is not required. Even if you see the screen which is there in front of you, there is a company where again CBE code is mentioned. The short name is CBPL, just short name of Comtech Bishop Private Limited, our company, as a dummy data, and you can see equity NSE. So this will be all terminology which we'll be using in the program. You may find something which is confusing in terms of display or output, but those things will be required anyway when you move little advanced. So maybe our terminology will be little bit plus or minus, right? So just handing over it to Sandeep. Sandeep, you start with program main menu, and then whoever is the concerned person for explaining brokerage or KYC, you take it that way, right? Yeah. Oh, thank you, Nilesh bhai. Okay. Hello, everyone. Myself is Sandeep, and we'll start with the today in the first sessions in IBITS regarding all the masters component. Now, everybody knows there are many masters are required to update in our systems on daily basis. Will it be convenient after 4? There is one Exchange API meeting which they are left to confirm the time. So from Gaurav will explain the master component right from the beginning. Example, the first thing is my master, nothing but the KYC. Yeah. Sometimes what happens? See, we have our KYC module also, but sometimes we to unmute. Mute. Hello, please unmute yourself. Just mute. Or mute. Hello. આપણે mute all કરીને mute all કરીને કોઈનો અવાજ આવે છે. 1 second. Chalo, sorry for all disturbance. Sandeep, continue. Okay. થઈ ગયું. Okay. Sandeep, continue. નિલેશભાઈ 1. Okay. So Vinod, Vinod ji कौन है? Just he has raised the hand. So any questions? I had raised a hand, but no, I don't have any question. You Okay. just carry on, please. Yeah, Okay. yes, sir. ओके, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट? ओके, अच्छा, अभी देखो डेली बेसिस पे हमें बहुत सारे मास्टर्स जो हैं जो आईबीट्स में अपडेट करने पड़ते हैं, और देयर आर सर्टेन मास्टर्स जिसकी डिपेंडेंसी मेरी एक्सचेंज की फाइल के ऊपर भी है। तो फर्स्ट मास्टर जो पार्ट है मेरा केवाईसी है। अभी देखो हमारा केवाईसी का मॉडल भी है, जहां से हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई अकाउंट ओपन होगा तो हम यहाँ पर पुश करेंगे ट्रेडिंग बैक ऑफिस में। लेकिन कभी कभी क्या करना पड़ता है कि मुझे केवाईसी यानी अकाउंट कोड मुझे यहाँ पर मेरे जो ट्रेडिंग बैक ऑफिस है वहां पर भी मुझे कभी कभी ओपन करना पड़ता है। तो वो स्क्रीन एक बार आपको गौरव भाई शेयर करेंगे कि कैसे वो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दूसरा, डेली बेसिस पे मुझे एक्सचेंज से बहुत सारी फाइलें आती है जो सिस्टम में मुझे एक बार अपडेट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के स्क्रिप्ट मास्टर, नाउ स्क्रिप्ट मास्टर जो है जो मुझे अवेलेबल है बीएससी से एज वेल एज एनएससी से। अभी बीएससी और एनएससी में जो स्क्रिप्ट मास्टर अवेलेबल है वो हम पहले सिस्टम में अपडेट करते हैं। वो मुझे अपडेट क्यों करना पड़ता है स्क्रिप्ट मास्टर के अंदर, कि जब मैं ट्रेड अपलोड करता हूँ या फिर मैं होल्डिंग फाइल अपलोड करता हूँ मेरी सिस्टम के अंदर, और अगर कोई नया स्क्रिप्ट लिस्टेड हुआ और वो मेरी सिस्टम के अंदर अपडेट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग द डे प्रोसेस यानी ट्रेड अपलोड करते समय या फिर होल्डिंग अपलोड करते समय मुझे वहां पर बहुत सारी क्वेरी अराइज होती है।
तो वो क्वेरी जो आती है उससे क्या बेसिकली क्या इम्पैक्ट आता है कि हमारा प्रोसेस साइकिल थोड़ा स्लो हो जाता है, राइट? कि पहले क्लाइंट का सपोज स्क्रिप्ट मास्टर में कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है तो जाकर के पहले वो अपडेट करो, या फिर सपोज होल्डिंग फाइल में भी अवेलेबल नहीं है तो होल्डिंग पहले स्क्रिप्ट मास्टर अपलोड करो, बाद में होल्डिंग अपलोड करो। तो वहां पर क्या होता है, मेरा प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ट्रेड इंपोर्ट करते समय मेरा प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। So it's better to upload the script master in the beginning. Morning में जैसे आप ऑफिस में आते हो तो जैसे BOD process, see it is not a BOD process, लेकिन by thumb rule we have to update our script master also with the help of exchange script file. अभी यहाँ पर script file है ना, दोनों exchange की अलग अलग आती है, एक BSC की भी आती है और एक NSE की भी आती है। तो हमारा सिस्टम गौरव आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम कौन सी फाइल पहले सिस्टम में अपलोड करेंगे, बराबर? BSc as well as NSE, right? So that Gaurav will explain you why BSc first and then NSE उसके बाद में, बराबर? So then there is one more master file, that is nothing but the var file. This is not the master file, but this is required for our process to update, right? So var file, then there are closing price. So these are the different files which is fall under master as well as under the transactions. So that we have to update on the daily basis to avoid the hassles during the day process. So Gaurav, you just start with our KYC where we have to open our client. And master. Okay, fine. Okay. You Hello, just start. everyone. Hello everyone. Good morning. First, I start master menu. अभी आपको ब्रीफली में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अभी ये जो मेनू है में एंट्री TRX इंपोर्ट प्रोसेस, तो अभी जो मास्टर मेनू है, जो आपका जो क्लाइंट मास्टर है, GL मास्टर है, बैंक मास्टर है, स्क्रिप्ट मास्टर है, तो सभी सारा जो मास्टर जो सेविंग होता है वो सब मास्टर के अंदर आपको डेटा सेव होता है। ओके, बाद में है एंट्री मेनू, जो आपका डेली का जो ट्रांजेक्शन डेटा जो स्टोर होता है वो आपका एंट्री TRX में होता है। उसके बाद है इंपोर्ट लाइक वोट के जो एक्शन का ट्रेड फाइल है एज वेल एज अदर फाइल लाइक ए मार्जिन फाइल, स्क्रिप्ट मास्टर फाइल, अदर रिलेटेड एक्शन रिलेटेड जो फाइल आती है, वो सब फाइल जो एक्शन के रिलेटेड जो फाइल आती है वो सब में इंपोर्ट होता है। अब जो मेनू आप जो ट्रेड फाइल होने के बाद आपको यूजर डेटा वो सब में दिखेगा। ओके, अभी मैं आपको फर्स्ट टर्म में Your voice is not clear. Hello. आ रही है वॉइस? So disturb. Gaurav, हाँ, your voice is not clear. It is cracking. तो हेलो, माइक तेरा जो अपना जो माइक जो रहेगा ना उसको थोड़ा ऑलरेडी सॉरी voice is breaking. Sandeep, just if he can't, then just you continue, because the voice there is some disturbance. Okay. हाँ गौरव, let me continue गौरव, मैं कंटिन्यू यहाँ से। ओके, अभी देखो गौरव मैं एक्सप्लेन कर, लेकिन वहां पर उसका कुछ इंटरनेट का इश्यू है, तो आई विल शेयर माय स्क्रीन, 1 सेकंड ना। Yes. Can you see my screen, Gaurav? Yes, Sandeep. Okay. So on daily basis, by thumb rule, we have to upload the script master in our system. But before that, I will just start with my KYC. Now, what is this KYC? See, normally हमारे पास तो अपना KYC मॉडल तो है, लेकिन कभी-कभी ट्रेड अपलोड करते समय कुछ क्वेरी होती है कि सपोज अकाउंट मिसिंग या अकाउंट नॉट फाउंड इन द मास्टर, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर के अकाउंट ओपन करते हैं फॉर टेम्पररी। तो उसके लिए हम जाते हैं मास्टर के अंदर, KYC का एक मॉडल है, KYC एडिट फॉर द सेटलमेंट टीम। ओके, यहाँ पर हम जाएंगे सिस्टम के अंदर और वहां से देखो
टॉप में एक सेकंड बटन है ऐड न्यू, या यू कैन प्रेस कंट्रोल ए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। जैसे मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, मुझे अगर यहाँ पर कोई क्लाइंट का अकाउंट कोड ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम मुझे उसका बाकी का इंफॉर्मेशन यानी ब्रोकरेज डिटेल डालनी है, या फिर उसका प्रोफाइल, चार्ज प्रोफाइल जो मुझे उसको एक्सपेंस लगाना क्या है, या फिर उसका राउंडिंग प्रोफाइल, वो सब मुझे यहाँ पर ऐड करना, तो वो सब भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पर अकाउंट ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर उसकी कैटेगरी डालनी पड़ती है कि उसका टाइप कौन सा है, नॉर्मल है कि एचयूएफ है कि इंडिविजुअल है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया इंडिविजुअल, तो मैं इंडिविजुअल में उसका यहाँ पर डाल सकता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट है मेरा कैटेगरी, कि कौन सी कैटेगरी में फॉल थ्रू हो रहा है, यानी ये मेरा रिटेल कैटेगरी है और उसका मैं नाम यहाँ पर डाल सकता हूँ। यहाँ एग्जाम्पल के मैं एक डमी नाम डाल रहा हूँ ABC, ओके, और उसका कोड है एग्जाम्पल X999, डमी है इसके लिए मैं उसको ऐड करता हूँ, राइट। उसका यहाँ पर डिटेल है, इंफॉर्मेशन में मुझे यहाँ पर पहले डिटेल सब डालनी है कि क्या क्या है उसका, सच पैन नंबर, मैपिन आईडी, एग्जाम्पल वॉट एवर में भी, एंड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है। प्लस यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसका सब अकाउंट कोड, सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंट है सब CBE प्लस। अभी ये क्या है, ये सब CBE प्लस मतलब ये क्लाइंट कौन से CBE यानी जो नीलेश मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, कौन से सेगमेंट एक्शन में ये रजिस्टर है, तो वहां पर मुझे जाकर के क्लाइंट को सबसे पहले ऐड करना पड़ता है। अभी तक यहाँ पर मेरे ये मास्टर के अंदर मैंने डिफाइन करके रखा है कि यहाँ पर मेरे पास इक्विटी NSE, इक्विटी BSE, FO NSE, करेंसी यहाँ पर मेरे पास मॉड्यूल में अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक को सिलेक्ट करके, जैसे कि मैंने फर्स्ट NSE EQ को सिलेक्ट किया और मैंने ऐड सेगमेंट कर लिया, यानी ये क्लाइंट मेरा NSE में रजिस्टर है। सी मैंने उसका KYC मैनुअल तो कर दिया है एक्सचेंज में, लेकिन सपोज मेरा KYC का डेटा में से यहाँ पर पुश नहीं हुआ, आपने एग्जांपल डायरेक्ट KYC में उसका क्लाइंट का अकाउंट ओपन कर दिया है और वो क्लाइंट का कोड आ गया और मुझे वो अपलोड करते समय वहां पर मैसेज मिला, मैं आपको ट्रेड अपलोड करूंगा ना तो वो सब मैसेजेस में शो करूंगा कि कौन सा ट्रेड अपलोड करते समय मैसेजेस आएंगे। तो जो मैसेजेस आएंगे उसके अंदर ये एक है मैसेज आ सकता है कि अकाउंट कोड नॉट फाउंड, तो ये अकाउंट कोड नॉट फाउंड के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये क्लाइंट मेरा NSE में रजिस्टर है, तो मैं पहले क्या करूंगा उसको सिलेक्ट करके ऐड कर लिया। उसके बाद सपोज ये क्लाइंट BSE में भी रजिस्टर है, तो यहाँ पर मैं इक्विटी BSE सिलेक्ट करके ऐड करता हूँ। लाइकवाइज मैं अलग अलग सेगमेंट एक्सचेंज सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करूंगा। जैसे जैसे ऐड करूंगा यहाँ पर ये आपको शो करेगा कि ये क्लाइंट का बेसिकली मास्टर वो कहाँ रजिस्टर है। ये मेरा एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर फिर मुझे उसका डालना पड़ता है कि क्लाइंट का एक्सचेंज में UCC कोड क्या है, तो आई कैन सेम X999 सेम, the same thing, and for NSE cares also for NSE FNO same। मैंने उसका जो एक्शन में UCC कोड है वो कोड मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर अगर उसका एक्टिवेशन डेट मुझे डालनी है तो यहाँ पर एक्टिवेशन डेट भी मैं डाल सकता हूँ और डीएक्टिवेट भी मुझे डालनी है तो मैं डाल सकता हूँ। अगर ये अवॉइड भी कर सकता हूँ, अगर मुझे नहीं डालनी तो आई कैन जस्ट सेव दिस बटन, मैंने यहाँ पर उसको सेव कर दिया। तो यानी प्लान के अंदर क्या सबसे पहले उसको यहाँ पर किया। ओके, अभी मैं नेक्स्ट यही मास्टर के अंदर Sandeep, speaker is overlapping mic. आपको तो माइक नहीं एक मिनट ओके। अभी ये मैंने क्लाइंट का UCC यहाँ पर सिस्टम के अंदर सेगमेंट एक्शन में रजिस्टर कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर सब अकाउंट कोड में जाऊंगा, सॉरी उसके पहले और सब CBE प्लस, क्यों? क्योंकि मुझे ये क्लाइंट का
ब्रोकरेज स्लैब कोड जो मैंने ब्रोकरेज मास्टर में डिफाइन करके रखा है वो मुझे क्या डालना है या उसको क्या मैप करने का है वो यहाँ पर मुझे डालने का है। अभी यहाँ पर मैं उसका ब्रोकरेज कोड डालूंगा। एग्जाम्पल AA एक स्लैब कोड है जो मैंने ऑलरेडी मेरा ब्रोकरेज मास्टर में डाला हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। वो मैं उसको असाइन करूंगा फॉर द ऑल द सेगमेंट एक्सचेंज, NSE case, BSE case as well as for NSE F&O, right? Likewise, you can add this brokerage code for multiple segment action. At the same time, there are many switches which we update, right? But that is not required right now. That we will update later on. So this, because we have to continue with the trade upload immediately, right? Okay. Now there is one more important thing is sub account code. Now what is the sub account code? Here we have to map the charges which we have to apply to the client, right? So we have there is option over here, charges, where you can apply default. Now what is this profile? That also I will explain in when I will go through this charge master, right? Then there is a rounding profile that also we have to attach to the client. So likewise, there are many switches we have to update in our system, but obviously for trade upload, this is minimum requirement. So after updating all these charges, brokerage master and segment exchange, you just save this button. So this will add in our client master, and you can start uploading the trade if this client code is missing in the our master. Right? Now I will go to another master, that is nothing but my brokerage master. ब्रोकरेज मास्टर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले रहेगा कि ये ब्रोकरेज कोड जो मुझे डिफाइन करने का है वो मैं कौन से सेगमेंट के लिए मैं मुझे डिफाइन करने का। अब देखो यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट है एज वेल एज FO सेगमेंट है और करेंसी है। लाइकवाइज मल्टीपल सेगमेंट इज आर देयर। नाउ व्हाई देयर इज नो एक्सचेंज इज नॉट देयर, बिकॉज एक्सचेंज सपोज आपको डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर रो लेवल पे डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल में एक स्लैब ऐड करता हूं, AA करके ब्रोकरेज कोड है जो मैं डिफाइन करूंगा सिर्फ इक्विटी सेगमेंट के लिए, राइट? यहाँ पर मैं मेरा जो अलग अलग एक्सचेंज के लिए जो ट्रेड बुक है यानी रोलिंग और ट्रेड फॉर टाइप है वहां पर मैं डिफाइन मुझे करना है तो मैं कर सकता हूं, अगर मुझे नहीं करना तो मैं नहीं भी करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा स्लैब जो एप्लीकेबल होगा वो सेगमेंट लेवल का होगा। यानी मैं अगर सपोज क्लाइंट आज की तारीख में NSE में एक्टिव है और कल उसने और उसके लिए मैंने स्लैब डाल दिया और वो सेम क्लाइंट कल BSE में एक्टिव हो गया तो मुझे उसके लिए वापस स्लैब डालने की जरूरत नहीं है। जैसे उसका BSE में ट्रेड आ जाएगा ऑटोमेटिक मेरा ये स्लैब उसको अप्लाई हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर बुक कोड जो रोलिंग और ट्रेड फॉर ट्रेड डिफाइन करता है वो मुझे यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर क्लाइंट ने ट्रांजेक्शन कर दिया रोलिंग में भी किया और वही क्लाइंट ने ट्रेड फॉर ट्रेड में भी कर दिया तो मेरा ये स्लैब दोनों सेटलमेंट टाइप में लग जाएगा, रोलिंग एज वेल एज मेरा ट्रेड फॉर ट्रेड के अंदर। कैसे? यहाँ पर मैं सिस्टम के अंदर ऐड करता हूँ मार्केट अमाउंट जो मुझे क्राइटेरिया सेट करने का है। जैसे मैं यहाँ पर ऐड करूंगा डेली में मुझे क्या स्लैब लगाना का है और इंट्राडे यानी स्क्वायर ऑफ साइड A और स्क्वायर ऑफ साइड B में मुझे क्या लगाने का है, राइट? तो जैसे मेरा ट्रांजैक्शन रोलिंग में आएगा तो सिस्टम उसको इंट्राडे एज वेल एज डिलीवरी दोनों लगाएगा, लेकिन इंट्राडे में ट्रेड फॉर ट्रेड आएगा तो ऑटोमेटिक वो मेरा डिलीवरी वाला जो स्लैब मैंने डिफाइन करके रखा है वो यहाँ पर उसको अप्लाई हो जाएगा। यानी सिस्टम के अंदर आपको रोलिंग और ट्रेड फॉर ट्रेड के लिए भी अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर क्या है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट का फंडा है। ये स्टार्ट डेट और एंड डेट का फंडा से क्या इम्पैक्ट आता है, आपका मास्टर मेंटेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? एग्जांपल के देखो मेरा स्लैब का कोड है AA। अभी AA मेरा जो स्लैब कोड है मैंने एक स्पेसिफिक ग्रुप को अप्लाई करके लगा के रखा हुआ है। अभी कल सपोज वही स्लैब के अंदर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन आता है। सपोज मैंने यहाँ पर जो स्टार्ट किया है 9 मई से और उसका एंड डेट है 31 दिसंबर 2050 और मेरा मिनिमम डिलीवरी में मैंने परसेंटेज सपोज 0.50 डाला है और मिनिमम एग्जांपल के 0.10 है और इंट्राडे में
0.05 है और सपोज लेट से मिनिमम 0.03 है और स्क्वायर ऑफ में सपोज 0.01 पैसा है। ये मैंने ऑलरेडी एक स्लैब सिस्टम के अंदर डाल के रखा है। अभी सेम स्लैब को अगर मुझे मॉडिफाइड करना है सपोज 1 जून से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये स्लैब के अंदर 31 में एज ए एंड डेट डाल दूंगा और सेम स्लैब के अंदर मैं मॉडिफाइड करूंगा 1 जून से और सपोज इंस्टेड बराबर मैं यहाँ पर 0.40 कर दूंगा। यानी सपोज डबल ए करके मैंने एक स्लैब कोड क्रिएट किया है जो मैंने मेरे एक ग्रुप को या मैंने मल्टीपल क्लाइंट को लगा कर रखा है और वही डबल ए में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो मुझे अलग अलग क्लाइंट कोड के सामने कुछ अलग अलग मतलब स्लैब कोड में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मेरा जो स्लैब डिटेल है यानी मेरा ब्रोकेज मास्टर है वहां पर ही मैं स्टार्ट डेट और एंड डेट का फंडा यूज करके मैं वो स्लैब को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। यानी मिनिमम एडिटिंग में आपका मैक्सिमम आउटपुट आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। तो ये स्लैब जो मेरा है, जो मैंने डबल ए करके खोला हुआ है, वो मैंने इक्विटी मार्केट में क्लाइंट को डिफाइन करके रख दिया, राइट, विच विल अप्लाई फॉर एनएसई एज वेल एज फॉर बीएसई और प्लस रोलिंग और ट्रेड फॉर ट्रेड के लिए भी मेरा स्लैब अप्लाई हो गया। अभी ये सेम स्लैब अगर मुझे एफ&ओ में खोलना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा एफ&ओ और यहाँ पर मैं ओपन करूंगा ऐड करके। अभी जैसे यहाँ पर मैंने एफ&ओ में ऐड किया, राइट, यहाँ पर भी सीरीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक ही स्लैब कोड के अंदर मुझे फ्यूचर में कुछ अलग लगाना है और ऑप्शंस में मुझे कुछ अलग लगाना है, तो मैं यहाँ पर सीरीज सिलेक्ट कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम अगर फ्यूचर के अंदर भी आपको बाइफिकेशन चाहिए कि फ्यूचर इंडेक्स में मुझे अलग लगाना है और फ्यूचर स्टॉक में भी मुझे अलग लगाना है, तो यहाँ पर ऑप्शंस है। एट द सेम टाइम ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन इंडेक्स या ऑप्शन स्टॉक में मुझे अलग स्पेसिफाई करना, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और यहाँ पर ब्रोकरेज मुझे कैसे अप्लाई करना है, मार्केट रेट पे करने का है या मार्केट अमाउंट प्लस स्ट्राइक प्राइस पे करने का है या फिर सिर्फ मार्केट रेट पे करने का है, तो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। और अच्छा, प्लस यहाँ पर लॉट वाइज भी ब्रोकरेज आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ही मुझे सिलेक्ट करने का है कि मुझे लॉट वाइज लगाने का है या फिर कैसे डिफाइन करने का है। फिर मैं थोड़ा फर्दर आगे जाता हूँ। यहाँ पर सिस्टम के अंदर भी सेम फंडा अवेलेबल है जो मैंने बताया था विद द स्टार्ट डेट और एंड डेट का। यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर और एक थोड़ा दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स लेकिन फंक्शनलिटी है कि अगर मुझे फॉर्मूला बेस्ड लगाना है तो मैं फॉर्मूला बेस्ड भी यहाँ पर सिस्टम लगा। एग्जांपल के नॉर्मल तो है, चलो नॉर्मल में मैंने डाल दिया कि ब्रोकेज परसेंटेज और मिनिमम व्हिचएवर इज हायर, राइट, स्क्वायर ऑफ साइड ए स्क्वायर ऑफ साइड बी, जो मैंने कैश मार्केट में बताया सेम स्लैब आप यहाँ पर लगा सकते हो, बराबर। फ्यूचर के अंदर फ्यूचर प्राइस के ऊपर लगेगा और ऑप्शन के अंदर प्रीमियम प्राइस के ऊपर लगेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, अगर आपने लॉट वाइज डिफाइन करके रखा है तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला सिलेक्ट करता हूँ मैक्स ऑफ व्हाट बी प्लस लॉट, तो जो आप फॉर्मूला यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स स्टाइल। जो मैट्रिक्स स्टाइल अगर आप सिलेक्ट करेंगे वो हिसाब से यहाँ पर वो स्पेसिफिक सेल्स हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने देखो ऊपर सिलेक्ट किया मैक्स ऑफ बी एंड लॉट, बी मीन्स व्हाट, परसेंटेज एंड लॉट व्हिचएवर इज हायर, राइट। यानी सपोज मैंने यहाँ पर परसेंटेज भी डाला है या मिनिमम रेट भी डाला है और लॉट भी डाला है, तो सिस्टम दोनों कंपोनेंट चेक करेगा और वो उसको वो हिसाब से ब्रोकेज यहाँ पर लगा देगा, राइट। देन देयर आर मेनी अदर दिस थिंग्स फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्लाइंट को यहाँ पर ब्रोकेज से अप्लाई कर सकते हैं, बराबर। तो ये हो गया मेरा फ्यूचर्स के लिए और ऑप्शंस के लिए स्लैब जो एकदम डिटेल में हमने यहाँ पर किया हुआ है, ओके। उसके बाद अच्छा, इसमें कुछ क्वेरी रहेगी तो आप बोल सकते हैं। ये कोई और सेगमेंट कवर कर सकते हो क्या आप, जैसे कि फिजिकल सेटलमेंट वगैरह, अगर कर सकते हो तो मैं तो फिर बाद में पूछेंगे। विच सेगमेंट? फिजिकल सेटलमेंट। फिजिकल? हाँ फिजिकल
हाँ तो फिजिकल, हाँ तो फिजिकल के अंदर भी वही कवर हो जाएगा कि जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर स्लैब को डबल ए खोल के रखा है, बराबर है। अभी फिजिकल के अंदर क्या होता है कि मेरा कैश मार्केट में वो डिलीवरी सेटल हो रही है, बराबर है। तो अगर आपका एनएससी एफओ में ट्रांजैक्शन है और क्लाइंट ने वहां पर ट्रेड कुछ एक्सरसाइज या असाइन जो किया हुआ है, राइट, और वो इन द मनी है, तो उसका फिजिकल सेटल हो जाएगा, यानी उसका एनएससी कैश मार्केट में उसका डिलीवरी का इफेक्ट आएगा। तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, एनएससी कैश मार्केट में उसको हमने जो स्लैब लगा के रखा है वो सेम स्लैब उसको अप्लाई हो जाएगा। और जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेंगे सिस्टम के अंदर, तो वो जो कैश मार्केट में हमने उसको जो स्लैब डाल के रखा है वो ऑटोमेटिक फिजिकल वाला जो सेटलमेंट है उसमें भी उसको लग जाएगा। यानी मुझे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर मैं कोई स्लैब कोड डिफाइन करता हूं कैश मार्केट में, वो मैं रोलिंग के लिए भी डाल सकता हूं, ट्रेड फॉर ट्रेड के लिए भी डाल सकता हूं, और जैसे अभी आपने बोला फिजिकल, उसके लिए भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर मुझे मल्टीपल टाइम डालने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में मैं एक ही बार स्लैब को डबल डालूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक तीन जो सेटलमेंट टाइप है, यानी रोलिंग, ट्रेड फॉर ट्रेड और फिजिकल की जो सेटलमेंट टाइप है उसके लिए ये अप्लाई हो जाएगा, बराबर है। ओके, सो दिस इज माय ब्रोकरेज मास्टर, राइट। इसमें आपको और एक सेगमेंट का पूछना था, एफएनओ में जो मतलब एक्सपायर होते हैं ना, उसका सेटिंग कैसे है वो? हाँ, एफ&ओ के अंदर अगर आपका एक्सपायरी है उसके लिए, बराबर है ना, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। एक मिनट, एफ&ओ के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप है फॉर एक्सरसाइज एंड फॉर असाइन, बराबर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल एस कोड डाला और मैंने सेगमेंट सिलेक्ट कर लिया एफ&ओ, और यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया नॉर्मल ट्रेड के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करूंगा, लेकिन फॉर असाइन एक्सरसाइज के लिए मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा एक्सरसाइज एज वेल एज असाइन। तो जैसे आप ये एक्सरसाइज और असाइन सिलेक्ट करेंगे और अगर वो ट्रेड आ गया सिस्टम के अंदर एक्सरसाइज और असाइन का, और आप कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेंगे, तो वो स्पेसिफिक स्लैब एक्सरसाइज असाइन वाला भी क्लाइंट को अप्लाई हो जाएगा। ओके, और उसी तरह से ये एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी है क्या, क्लोज आउट जो है ऊपर वो? नहीं, क्लोज आउट के लिए बेसिकली क्या होता है, क्लोज आउट जो होता है सर, देखो क्लोज आउट हम लोग एफ&ओ में करते हैं, तो जो आउट ऑफ द मनी है, जैसे कि ऑप्शंस के अंदर क्या होता है मालूम है, जो जीरो रेट से असाइन होता है, असाइन या एक्सरसाइज होता है जीरो रेट से, राइट, वहां पर तो स्लैब लगने वाला ही नहीं है ना। सी, हमने उसका टाइप बना के रखा है, लेकिन इसके अंदर स्लैब डालने का कोई पर्पस नहीं है। स्लैब कहां पर लगेगा, जहां पर कुछ रेट हो, यानी एक्सरसाइज असाइन के अंदर जो ऑप्शंस में है वहां पर अपना वो रेट लग जाएगा, स्लैब लग जाएगा। ओके ओके, नहीं मेरा एक्चुअली दूसरा मतलब ऑप्शन नहीं, मतलब नॉर्मल फ्यूचर से और एक्सपायर हो गए तो उसको किस तरह से लगाते हैं आप सेटिंग, मतलब क्या सेटिंग है? अगर टर्नओवर पे लगाना है ना, उस पे मतलब जितने भी लॉट है बेसिकली, मतलब अगर वो मतलब नॉर्मल कैसे, कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? फॉर एग्जांपल 10 लॉट थे निफ्टी के और वो 10 के 10 लॉट एक्सपायर हो गए, उसने स्क्वायर ऑफ नहीं किए, तो उसके लिए एफएनओ में क्या प्रोविजन है? फ्यूचर्स के ऑप्शंस था पहले, वो फ्यूचर्स निफ्टी के फ्यूचर्स है वो एक्सपायर हो गए, तो उसको मेरा फ्यूचर का क्लोजिंग प्राइस है, तो वहां पर तो मुझे स्लैब लगाना ही नहीं है। नहीं समझा नहीं। उसने स्क्वायर नहीं किया तो ऑटोमेटिक क्लोज आउट में चला गया, तो वहां पर तो मुझे स्लैब लगाना ही है। हम कहां पर स्लैब लगाते हैं, जो एक्सरसाइज और असाइन हुआ वहां पर हम लोग नॉर्मली ब्रोकर लगाते हैं, और वो कॉम्प्लायंस नहीं है। अगर क्लाइंट का क्लोज आउट हुआ तो वो दिस इज आल्सो अगेंस्ट कॉम्प्लायंस,
ओके, बराबर है? बट ये फ्यूचर का बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शंस में जा ही नहीं रहा हूँ। नॉर्मल फ्यूचर्स है, चाहे वो निफ्टी है या स्टॉक फ्यूचर है, वो एक्सपायर हो गया तो उसमें प्रोविजन है क्या इसमें? आई थिंक मतलब फॉर एग्जांपल 10 लॉट निफ्टी के है, 10 लॉट इनटू जो भी निफ्टी का क्लोजिंग रेट है भाव इनटू मतलब वो टर्नओवर हो गया इनटू सम परसेंटेज, अगर मतलब विच शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2.5%, लेट्स से एक कंप्लायंस का ये है, तो उसमें ऐसा कुछ हैंडलिंग है क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ। मैं नहीं, ऑप्शंस के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्यूचर्स के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, फ्यूचर्स में नहीं है, क्योंकि वो कंप्लायंस के अगेंस्ट में है ना, इसके लिए क्लोज आउट वाला ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने यहाँ पर प्रोविजन किया है एक्सरसाइज और असाइन, जो ऑप्शंस के लिए है। Okay, we will take it separately. I do not agree with this. मतलब I agree with this thing. Worthless expiry. I mean options अगर वर्थलेस में जीरो वाला, हाँ जीरो वैल्यू ऑप्शंस, बट फ्यूचर्स का तो मतलब होता है ना सेटल्ड, मतलब पूरा that will, या वो एक बार डिस्कस करेंगे, नो इशू। बट आई मीन दैट पॉइंट नीड टू बी क्लियर। ओके बाय। ओके, नो प्रॉब्लम। भास्कर भाई, हाँ बोलो ना। इफ वी डिफाइन ऑल, तो एक्सरसाइज असाइन के लिए कोई अलग डिफिनेशन देना पड़ेगा कि ऑल में सब आ गया? नहीं, यहाँ पर अपने को एक्सरसाइज, हाँ अगर आप नहीं, एक्सरसाइज असाइन के लिए मुझे अलग से लाना ही पड़ेगा। नहीं मतलब अलग ऑल है तो उसमें एक्सरसाइज असाइन नहीं आएगा? नहीं, ऑल नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा मनोज भाई। हाँ, क्योंकि मेरे को मतलब देयर अदरवाइज आई हैव टू क्रिएट अ 3 अकाउंट, टीआरएक्स, एक्सरसाइज असाइन, सब के लिए वो 3 ऑप्शन ऑपरेट मेरे को डालने पड़ेंगे। आपका पॉइंट वैलिड है, शायद वो होना चाहिए, लेकिन एक बार एक चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन टाइप डालता हूँ, मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया, तो लग रहा है कि नहीं, एक बार पड़ेगा। बराबर है? यस, प्लीज चेक इट। ओके ओके, तो ये मेरा हो गया एफ&ओ का स्लैब। ओके, अभी नेक्स्ट में जा रहा हूं मैं चार्जेस के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा एक बताता हूँ कि ये मेरा सेटलमेंट मास्टर है। जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था कि एक्सचेंज के अंदर एनएससी बीएससी के अंदर है ना, एक सेटलमेंट फाइल आती है, वो हम सिस्टम में मंथ के बिगिनिंग में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि मेरा सेटलमेंट मास्टर नेक्स्ट मंथ के लिए रेडी हो जाएगा। यानी मतलब डेली बेसिस पे यहाँ पर मुझे कुछ भी एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ेगी। बराबर है? उसके नीचे है मेरा कैलेंडर मास्टर। कैलेंडर मास्टर मतलब मुझे जो ड्यूरिंग द ईयर जो हॉलीडेज डिक्लेयर होती है, वो हॉलीडे हम यहाँ पर, मेरे पास अपलोड का ऑप्शन भी है, तो वो हम सिस्टम के अंदर अपलोड ऑप्शन यूज करके अपलोड कर सकते हैं। अगर मुझे मैनुअल कुछ डालना है तो यहाँ पर हम लोग मैनुअल भी डाल सकते हैं सिस्टम के अंदर। कैलेंडर मास्टर नॉर्मली वी प्रीफर गेट, आप सिस्टम के अंदर जाकर के अपलोड करके उसको अपडेट करते हो। दूसरा ट्रेड बुक मास्टर। ट्रेड बुक मास्टर जी क्या है बेसिकली कि जैसे हम लोग अलग अलग एक्सचेंज में एनएससी और बीएससी के अंदर कैपिटल मार्केट, वहाँ कैपिटल मार्केट में अलग अलग वहां पर उनकी ट्रांजैक्शन टाइप है, सेटलमेंट टाइप है। तो रोलिंग है, दूसरा ट्रेड फॉर ट्रेड है, फिर ऑफर फॉर सेल, बायबैक है, फिर अभी नया शुरू हो गया T+1 वाला। नॉर्मली अभी मार्केट में T+2 चल रहा है, अभी नया शुरू हो गया T1। बराबर है? उसके बाद मेरा जैसे फिजिकल डिलीवरी वाला जो फंडा है एफ&ओ के अंदर, तो ये अलग अलग टाइप जो है वो यहाँ पर हमने उसको हम लोग उसको बताएं कि मेरा ट्रेड बुक टाइप है। राइट? एग्जांपल मैं पहले यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, एनएससी मैंने कैश मार्केट में सिलेक्ट कर लिया और रिफ्रेश का बटन दबा दिया, तो मेरे एनएससी कैश मार्केट में जितनी भी ट्रेड्स जो मेरा अलग अलग सेटलमेंट टाइप में हो रही है यहाँ पर अवेलेबल है। ऑप्शन का भी है, क्लोज आउट, राइट, देन F&O for physical F&O for physical auctions, फिजिकल, फिर रोलिंग, जो हम यहाँ पर हम लोग उसको नॉर्मल रोलिंग करके मतलब डिफाइन करके ट्रेड फॉर ट्रेड, और रोलिंग के अंदर भी T+1 है तो NRL1 या NTT1। तो ये सब मेरे नॉमेनक्लेचर है जो हम लोग सिस्टम के अंदर यूज करते हैं ट्रेड अलग अलग एक्सचेंज के लिए, राइट, फॉर NSE एज वेल एज फॉर BSE। तो दिस इज नॉट नथिंग बट अवर ट्रेड बुक मास्टर। उसके बाद मैं कवर करता हूं चार्ज मास्टर, राइट।
चार्ज मास्टर्स मीन्स जो एक्सचेंज या जो अपना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे जो चार्जेस डेबिट करती है, यानी एक्सचेंज मुझे डेबिट करती है ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी मुझे सेबी फीस कलेक्ट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एसटीटी और स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी जो मुझसे कलेक्ट करती है, वो जितने भी चार्जेस जो हम लोग क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट करते हैं, वो सब मेरा यहाँ पर चार्ज मास्टर है, राइट। ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस, देन एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये मेरा चार्ज मास्टर है। ये मैंने सिस्टम के अंदर वन टाइम एक बार डिफाइन करके रखा हुआ है, राइट। अभी ये जो चार्ज है, वो चार्ज के अंदर मुझे फॉर्मूला क्लाइंट को क्या क्या लगाना है, वो यहाँ पर फॉर्मूला है, चार्ज फॉर्मूला के अंदर, बराबर। अभी जैसे मैंने बताया था कि ये चार्ज, उसको हम लोग तो नाम देते हैं चार्ज प्रोफाइल करके। नाउ व्हाट इज दिस प्रोफाइल? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग जो मैं प्रोफाइल बनाऊंगा, वो प्रोफाइल के अंदर ये चार्जेस मैं यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ। नाउ देयर आर मेनी चार्जेस, राइट। एसटीटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, ये अभी ये चार्जेस के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट का प्रोविजन दिया हुआ है। ये स्टार्ट डेट एंड डेट का प्रोविजन क्यों करके रखा है? क्योंकि कभी कभी ये चार्जेस इन बिटवीन भी चेंजेस होते रहते हैं। अभी देखो एसटीटी जो डे 1 से शुरू होता है, आज की तारीख में कम से कम 5 से 6 बार चेंज, 3 से 4 बार चेंज हो गया है, राइट, फॉर कैश मार्केट एज वेल एज फॉर F&O सेगमेंट। यहाँ पर जैसे नीलेश मैंने बताया कि मेरा बुक मार्केट टाइप इज डिफाइंड फॉर सेगमेंट, कौन से सेगमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर उसको डिफाइन करते हैं, और उसके बाद जो कॉलम है वो मेरा एक्सचेंज को डिफाइन करती है कि कौन से एक्सचेंज के अंदर। यानी सपोज अगर मैं यहाँ पर सेगमेंट कोड 11 सिलेक्ट करता हूँ, 11 यानी इक्विटी मार्केट, और 12 है फॉर F&O, 13 फॉर माय करेंसी। अगर 11 में सेगमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये कैश मार्केट के लिए डिफाइन हो जाएगा। विद इन कैश मार्केट अगर मुझे एक्सचेंज सिलेक्ट करने का है तो यहाँ पर एक्सचेंज कोड का भी फैसिलिटी है, यानी कौन से एक्सचेंज के लिए, जो नॉर्मली हम प्रेफर करेंगे ट्रांजैक्शन चार्जेस के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी सब चार्जेस जो है वहां पर मेरा कॉमन चार्जेस लग रहा है, एग्जाम एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी फीस, लेकिन ट्रांजैक्शन चार्जेस एक जो चार्ज है वो एक्सचेंज वाइज हमें डिफाइन करना पड़ता है। ओके, अभी अगर हम ट्रांजैक्शन चार्जेस में जाते हैं तो यहाँ पर मैं फिल्टर करूंगा स्पेसिफिक एक्सचेंज, यानी 11 फॉर NSE एक्सचेंज एंड 12 फॉर BSE। अगर यहाँ पर मैं NSE सिलेक्ट करूंगा तो मुझे ट्रांजैक्शन चार्जेस जो NSE में सेगमेंट इक्वी के अंदर NSE के अंदर जो लग रहा है वो आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा स्टार्ट डेट और एंड डेट का फंडा है, क्यों? क्योंकि चार्जेस एक्सचेंज का सर्कुलर जो आता है कि वो लोग मतलब चेंज करते रहते, तो हम लोग यहाँ पर भी ऐसे चेंज करेंगे, और ये हम लोग एडवांस में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्ट डेट और एंड डेट का फंडा है। जैसे हम लोग एडवांस में मैंने डाल दिया तो जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और बिल जनरेट करेंगे ऑटोमेटिक वो चार्जेस यहाँ पर लग जाएंगे। अभी ये जो लेटेस्ट चार्ज अभी जो लग रहा है ट्रांजैक्शन चार्जेस NSE के अंदर में, एक बार मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर देर आर कॉलम परसेंटेज 1, 2, 3, 4 अलग अलग कॉलम है। यानी सपोज मुझे अलग अलग फॉर्मूला बेस यहाँ पर डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के अभी मैंने यहाँ पर मास्टर में डाला है परसेंटेज 0.00345 अभी, और परसेंटेज 2 इज 0.00275। मुझे अगर जैसे NSE में सबको पता है कि एज पर द NSE सर्कुलर जो निफ्टी बेस्ड स्टॉक है उसमें मुझे कुछ अलग परसेंटेज डिफाइन करना है, और जो अदर देन निफ्टी है वहां पर मुझे अलग डालना है। तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर डाल के रखा है कि चार्ज स्क्रिप्ट ग्रुप इन निफ्टी। अब ये निफ्टी क्या है, मेरा जो मैंने जो बताया ना स्क्रिप्ट मास्टर, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। स्क्रिप्ट मास्टर के अंदर देयर इज वन कॉलम चार्ज स्क्रिप्ट ग्रुप। अगर वहां पर आपने निफ्टी डाला रहेगा तो वो क्या करेगा, परसेंटेज 1 ऑटोमेटिक लगा देगा, और जहां पर निफ्टी नहीं रहेगा यानी ब्लैंक रहेगा ये कॉलम, तो ये परसेंटेज लगा देगा। तो अगेन दिस इज फॉर्मूला बेस्ड, बराबर है। तो सिस्टम के अंदर ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग परसेंटेज 1 और 2 अप्लाई करते हैं, जो मुझे अल्टीमेटली एक्सचेंज के साथ रिकंसिलिएशन करना है, बराबर है ना। तो ये हो गया हमारा चार्ज मास्टर एज वेल एज फॉर NSE। अभी BSE का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। BSE का क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्यों? क्योंकि वहां पर
सीरीज बहुत सारी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ ट्रांजैक्शन चार्जेस में, देखो देयर आर मेनी सीरीज बीएससी के अंदर, तो हमने भी क्या करके रखा है कि वो सीरीज वाइज यहाँ पर डाल के रखा है, जो फॉर्मूला टेबल के अंदर डाल के रखा है, बराबर। सी नॉर्मली वी अवॉइड पीपल टू यूज दिस, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला है, अगर कोई क्लाइंट ने कुछ इधर इधर मॉडिफाइड भी कर लिया तो उसका एरर मैसेज भी आ सकता है while generating the contracts, तो it is better to not to touch this formula, right? हमने सिस्टम के अंदर इनबिल्ट करके रखा हुआ है। अगर कोई एक्सचेंज के अंदर एनएसीआर बीएससी के अंदर ट्रांजैक्शन चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी कुछ भी चेंजेस आता है तो हम खुद एक बार यहाँ पर उसको अपडेट करते हैं, राइट? यूजर्स को हम लोग अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ भी चेंज हो गया है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है मालूम है? क्लाइंट का एक बार सपोज कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर दिया, एसटीडी स्टैम्प ड्यूटी या ट्रांजैक्शन चार्जेस लग गया, और जब हम लोग उसको रिकंसिल करने के लिए बैठते हैं तब जाकर के मुझे पता लगता है कि ये मेरा ट्रांजैक्शन चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी गलत लग गया। न्यू ब्रांड प्लीज तिथेच फोडायची बॉब त्याच्यासमोर, कारण त्या ठिकाणी तो मैंने यहाँ पर करके रखा है। अगेन ये सीरीज हम लोग कहाँ पर अपडेट करेंगे? स्क्रिप्ट मास्टर करेंगे, तो उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर इसको चार्ज अप्लाई करेंगे, %1, %2, %3 एंड 4 अलग अलग, राइट? तो मेरा बीएससी का ट्रांजैक्शन चार्ज, अगर मैं जाऊंगा एनएससी के अंदर स्टैम्प ड्यूटी फीस अलग अलग चार्जेस यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, राइट? तो चार्ज फॉर्मूला डिफरेंट चार्जेस। अभी मैं जाता हूँ थोड़ा आगे, चार्ज प्रोफाइल। अभी ये प्रोफाइल क्या है? जैसे मैंने केवाईसी में ओपन करते समय मैंने डिफाइन करके रखा, नाउ ये जो प्रोफाइल है इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल द चार्जेस, राइट? मैं क्या करूंगा, क्लाइंट को जाकर के सिर्फ प्रोफाइल ही अटैच करूंगा, बराबर है? और वो स्पेसिफिक प्रोफाइल के अंदर मुझे वो चार्जेस कौन सा चार्जेस अप्लाई करने का वहां पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। एग्जांपल के देखो, मेरा ये प्रोफाइल कोड 1 है, चार्ज प्रोफाइल 1। अभी वो चार्ज प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है कि कौन सा चार्ज मुझे क्लाइंट को अप्लाई करने का। नॉर्मली रिटेल क्लाइंट के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्सचेंज में जो लग रहा है डिफॉल्ट वही हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, राइट? जैसे कि मैंने बताया एसटीटी स्टैम्प ड्यूटी। अभी ये मुझे सिलेक्ट करने का, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और माउस की यूज करके मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। अभी ग्रीन बटन मतलब ग्रीन रेडियो बटन, यानी ये चार्ज क्लाइंट को लग जाएगा, बराबर है? क्योंकि मैंने ये प्रोफाइल में उसको सिलेक्ट करके रखा है। इट्स अ बुके ऑफ फ्लावर, प्रोफाइल इज नथिंग बट, राइट? तो ये यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा जो चार्जेस मुझे क्लाइंट को लगाने का। अगर सपोज कभी कुछ रिक्वायरमेंट आ गया कि ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ क्लाइंट जो है उसके मुझे ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगाना है, वैसे तो वो कॉम्बिनेशन आने वाला नहीं है, लेकिन सपोज ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आ गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस या सेबी फीस मुझे नहीं लगाना, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर एक नया प्रोफाइल ओपन करेंगे जिसका नाम है प्रोफाइल नंबर 2, और वो प्रोफाइल के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पर जाकर के मैं सेबी फीस यहाँ पर मैं डी सिलेक्ट करूंगा, बराबर है? जैसे कि ये जो है ये एक प्रोफाइल है, नॉर्मली ये इंस्टीट्यूशन के जो कॉम्बिनेशन आएगा उसमें ये सब कॉम्बिनेशन आएंगे, रिटेल वाले में तो ये कॉम्बिनेशन नहीं आ सकते हैं। अभी देखो ये कॉम्बिनेशन है चार्ज प्रोफाइल 2 एक्सक्लूसिव एसटीडी, जिसका मैंने नाम भी रखा है एक्सक्लूसिव एसटीडी, राइट? ये एक्सक्लूसिव एसटीडी मैंने नाम क्यों रखा है, क्योंकि जब मैं क्लाइंट का मास्टर के अंदर वहां पर मैं ड्रॉप डाउन करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे ये जो उसका प्रोफाइल नेम है वहां पर वो मुझे पॉपुलेट करेगा। अभी एक्सक्लूसिव एसटीडी का मतलब क्या है कि ये क्लाइंट को मुझे एसटीडी नहीं लगाना है, राइट? मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा चार्ज लगाना है, कौन सा चार्जेस नहीं लगाना है। तो यहाँ पर मैं अलग अलग प्रोफाइल में क्रिएट कर सकता हूँ और अल्टीमेटली ये प्रोफाइल में क्लाइंट को लगा सकता हूँ, बराबर है? तो ये हो गया मेरा चार्ज प्रोफाइल मास्टर के अंदर। फिर राउंड प्रोफाइल। नाउ व्हाट इज दिस राउंड प्रोफाइल? अभी जब मैंने बताया था, जब मैंने ब्रोकरेज मास्टर डिफाइन किया, सी अभी के कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है,
अभी के कॉम्बिनेशन में क्या क्या हो रहा है कि हमारा जो पुराना सिस्टम है या नॉर्मली बहुत सारे सिस्टम के अंदर हमने देखा रहेगा कि जब हम ब्रोकरेज डिफाइन करते हैं ना, तो ब्रोकरेज राउंडिंग भी हम वहां पर ही डिफाइन करते हैं, राइट? राउंडिंग ऑफ व्हाट? ब्रोकरेज मार्केट रेट राउंडिंग करते हैं, कभी ब्रोकरेज रेट राउंडिंग करते हैं या फिर कभी नेट रेट राउंडिंग करते हैं। तो नॉर्मली ब्रोकरेज रेट राउंडिंग होता है 2 डेसिमल या फिर 4 डेसिमल, और उसमें भी हमें सिलेक्शन आता है कि मुझे एक्चुअल लगाना है, नेक्स्ट लगाना है या प्रीवियस लगाना है। अभी सपोज मैंने डबल ए करके एक स्लैब ओपन करके रखा, एग्जांपल ब्रोकरेज मास्टर में वापस में जाता हूं और यहाँ पर मैंने स्लैब को डबल ए डाला। अभी स्लैब को डबल ए के अंदर मैंने क्या डाला है? डिलीवरी में, डिलीवरी के अंदर 0.50 और 0.10 मिनिमम। लेकिन यहाँ पर देखो राउंडिंग नहीं है, लेकिन सपोज सेम कोई कॉम्बिनेशन आ गया कि सपोज मुझे 0.10 और 0.50 और 0.10 ही लगाना है, लेकिन मेरा उसको राउंडिंग अलग लगाना है। नॉर्मली राउंडिंग 0.4 डेसिमल में रहता है, लेकिन उसको मुझे 0.2 में करना है। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है करंट सिस्टम के अंदर? मुझे ये स्लैब कोड 2 बार डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन ये करंट, ये जो हमारा आईबीट्स का सिस्टम है, यहाँ पर हमने क्या किया है, राउंड प्रोफाइल अलग से यहाँ पर ओपन करके रखा है। यहाँ पर हम प्रोफाइल ओपन करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के प्रोफाइल कोड इक्वल टू 1, राइट? जैसे मैंने चार्ज प्रोफाइल बताया, इट्स अ सेट ऑफ चार्जेस। इन द सेम वे यहाँ पर हम लोग एक प्रोफाइल बनाएंगे और वो प्रोफाइल हम लोग यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट एक्सचेंज के लिए भी बना सकते हैं। सेगमेंट एक्सचेंज जैसे नीलेश बताया, सीबी कोड, यानी मैंने ये डिफाइन करके रखता हूँ एनएससी कैश मार्केट, बीएससी कैश मार्केट या एफ&ओ के लिए, राइट? अगर मैं यहाँ पर एनएससी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये प्रोफाइल का मैंने नाम रिटेल एक बार डिफाइन करके रखा है और ये सेम मैं डिफाइन करके रखता हूँ एनएससी कैश मार्केट के लिए। यहाँ पर भी स्टार्ट डेट और एंड डेट का फंडा है, और यहाँ पर राउंड मेथड मुझे वो कैसे लगाना है, एक्चुअल, नेक्स्ट या प्रीवियस, जो अवेलेबल है मेरे पास मार्केट रेट के ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर और नेट रेट के ऊपर भी है, राइट? अभी राउंडिंग 2, पहले तो यहाँ पर मेथड आ गई और यहाँ पर राउंडिंग 2, अगर मुझे 4 डेसिमल करना है तो यहाँ पर मैं 4 डेसिमल भी कर सकता हूँ, राइट? और 2 डेसिमल करना तो 2 डेसिमल, और राउंडिंग ऑन व्हाट? इट इज रेट और अमाउंट। नॉर्मली रिटेल क्लाइंट के लिए ये रेट ही रहेगा, मार्केट रेट, ब्रोकरेज और नेट रेट। तो जैसे ही मैंने ये प्रोफाइल बना दिया राउंडिंग के लिए, और ये प्रोफाइल में अल्टीमेटली क्या करूंगा, क्लाइंट को अटैच करूंगा, जो मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था। अगेन आई एम गोइंग टू माय केवाईसी मास्टर राउंडिंग के लिए। माय सब अकाउंट कोड में मैं जाऊंगा, राइट? मैंने बताया था ना चार्ज मास्टर, ड्रॉप डाउन करूंगा तो मुझे यहाँ पर मेरे चार्ज का जो नोमेनक्लेचर है या कौन से चार्जेस के अंदर, कौन सी प्रोफाइल के अंदर मैंने क्या क्या डिफाइन करके रहे, वो यहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन में मुझे हेल्प मिल जाएगी। एट द सेम टाइम फॉर राउंडिंग ऑल्सो, राइट? जैसे मैंने रिटेल सिलेक्ट कर दिया तो वहां पर मैंने डाला है 2 डेसिमल राउंडिंग और एक्चुअल, लेकिन फॉर इंस्टीट्यूट के लिए मुझे अलग अलग डिफाइन करना है तो मैं अलग अलग डिफाइन कर सकता हूँ, और वो मैंने नोमेनक्लेचर में वहां पर डाल दूंगा नेम के अंदर, तो वो हेल्प भी यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। यानी इससे मुझे पता लग जाएगा कि जैसे ये मेरा एक्चुअल राउंडिंग है 4 डेसिमल मार्केट रेट और 2 डेसिमल मेरा ब्रोकरेज, या फिर प्रीवियस मार्केट रेट, प्रीवियस ब्रोकरेज रेट और प्रीवियस मेरा नेट रेट, ये प्रोफाइल के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो ये डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर मुझे हेल्प में मिल जाएंगे, राइट? तो ये प्रोफाइल भी यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ फॉर द राउंडिंग। तो ये हो गया मेरा राउंड प्रोफाइल, जो हम लोग ब्रोकरेज के साथ हमने अटैच करके नहीं रखा है, लेकिन हमने ब्रोकरेज के साथ अलग रखा है। उससे मुझे हेल्प मिल जाएगा कि मेरा स्लैब कोड एक ही है लेकिन राउंडिंग दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पर मैं 2 अलग अलग राउंड प्रोफाइल में खोल सकता हूँ, बराबर है? अभी मैं जा रहा हूँ मेरा स्क्रिप्ट मास्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। स्क्रिप्ट मास्टर के अंदर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएगी कि मेरे पास आज की तारीख में एक्सचेंज में कौन से टाइप के स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। कुछ इक्विटी के हैं, कुछ इंडेक्स है, कुछ मेरा ETF है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट फंड वाला है, अलग अलग जो टाइप है, कॉमोडिटी है या फिर म्यूचुअल फंड वाली मेरी स्क्रिप्ट है।
ये स्क्रिप्ट मास्टर हमने एक बार तो सिस्टम के अंदर एक बार अपडेट करके रखा है, लेकिन ऑन डेली बेसिस के ऊपर आपको भी यहाँ पर अपडेट करना है। कैसे कि जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था कि दोनों एक्सचेंज एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंज मेरा एक स्क्रिप्ट फाइल देती है जो मैं डेली बेसिस पे सिस्टम के अंदर अपडेट करूंगा। अभी दोनों एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएसई के अंदर पहले तो मुझे स्क्रिप्ट मास्टर आती है, बीएसई के अंदर script.txt करके आती है, और एनएसई में मुझे फाइल मिलती है एनएनएफ करके फाइल मिलती है। तो वो सिस्टम के अंदर मैं अपडेट करूंगा। अगर कोई नई स्क्रिप्ट लिस्टेड हुई तो मुझे ये एक्टिविटी बिगिनिंग ऑफ द डे में ही करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा कि जैसे मैं ट्रेड अपलोड करूंगा तो वहां पर मेरे पास मैसेज आएगा स्क्रिप्ट कोड या एब्सेंट स्क्रिप्ट कोड या ऐसा कुछ भी मैसेज आ जाएगा। तो मेरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी वहां पर थोड़ी स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे वापस दोनों स्क्रिप्ट मास्टर मेरे जो सिस्टम में अपडेट करने पड़ेंगे, और अपडेट करने के बाद मैं वापस ट्रेड अपलोड करूंगा, राइट? सो इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दिस हैसल्स ड्यूरिंग द डे एक्टिविटी। मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि बिगिनिंग में जैसे स्क्रिप्ट मास्टर एक्शन से अवेलेबल होती है वो मुझे सिस्टम के अंदर अपलोड कर देनी चाहिए। सी आप लोगों को सबको पता रहेगा कि फ्रंट ऑफिस में जब बोल्ट जो बीएससी में रहता है या एनएसए में नीट रहता है तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग डेली बेसिस पे मास्टर अपडेट करते हैं। उनका कुछ रूटीन है वो हम लोग रन करते हैं। वो रूटीन रन करने से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वहां पर उनका डेटाबेस अपडेट हो जाता है। सो इन द सेम वे आईबिट्स के लिए भी आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट मास्टर जो एक्शन में अवेलेबल है वो यहाँ पर अपडेट करनी पड़ती है। अभी यहाँ पर कुछ प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब बेसिकली कि मेरा जो बेस है, सी आज की तारीख में रिलायंस बीएससी एक्शन में भी लिस्टेड है और एनएससी एक्शन में भी लिस्टेड है, लेकिन वहां पर दोनों का लॉजिक यानी फंडा अलग है। बीएससी में जब हम लोग हम ट्रेड करते हैं तो बीएससी में जब हम ट्रेड करते हैं तो हम वहां पर क्या डालते हैं, स्क्रिप्ट कोड डालते हैं, लेकिन एनएसए में जब ट्रेड करते हैं तो वहां पर सिंबल यूज होता है। तो अभी दोनों को मुझे कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने का तो क्या करने का, तो हमने क्या किया है, मेरा जो बेस जो है आज की तारीख में वो बीएससी का मैंने बेस बना दिया। यानी सपोज कोई नई स्क्रिप्ट लिस्टेड होती है तो मैं सिस्टम के अंदर क्या अपडेट करूंगा, सबसे पहले मैं बीएससी का स्क्रिप्ट मास्टर अपडेट करूंगा। बीएससी का जैसे ही मैं स्क्रिप्ट मास्टर अपडेट करूंगा और उस तो वो कोड मेरे सिस्टम में अपडेट हो जाएंगे। उसके साथ क्या अपडेट हो जाएगा, उसका आईजैन कोड जो है वो अपडेट हो जाएगा। और इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, एनएसए का एनएनएफ फाइल भी अपडेट करूंगा। जैसे मैं एनएनएफ फाइल अपडेट करूंगा तो वहां पर कॉमन दोनों चीज के अंदर क्या है, आईजैन कोड अपडेट है, तो ऑटोमेटिक वो मेरा वहां पर एनएसए का सिंबल भी अपडेट कर देगा। यानी मेरा स्क्रिप्ट मास्टर बीएससी का स्क्रिप्ट कोड के हिसाब से और एनएसए का सिंबल के हिसाब से अपडेट हो जाएगा। वो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट डिटेल इक्यू करके मेरा और एक है वहां पर आपको मिल जाएगा। एग्जांपल मैं एक सिंपल स्क्रिप्ट कोड लेता हूं। मैंने एक स्क्रिप्ट कोड ले लिया एनएसए। हाँ बोलो, सॉरी। वन मिनट। ये संदीप भाई ये रोज शाम को अपडेट करेंगे ना जब आता है, मतलब पोर्टल पे? देखो ये है ना, शाम को अब आ जाती है फाइल, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग को भी कर सकते हैं या फिर रात को भी कर सकते हैं। ओके, हाँ वही टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, वही पूछना है। मतलब अभी मान लो कि ट्रेड प्रोसेस करने से पहले तो वो फाइल नहीं आएगा, वो फाइल कितने बजे आता है जनरली, उसके बाद ही आता है ना? मतलब ये एंड ऑफ द डे में आती है फाइल, तो आप बेटर है कि आप रात को कीजिए या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कीजिए। अच्छा, वो चलेगा ना, मतलब उसका मैक्सिमम लेट टाइम नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बराबर? या करेक्ट, मतलब आफ्टर 3:30 जो फाइल इंपोर्ट होगा तो आपको पता नहीं है कि कुछ आईएसएन चेंज हुआ है या कोई नई स्क्रिप्ट लॉन्च हुई है, तो आप बेटर है कि कल रात को एंड ऑफ द डे में कीजिए या मॉर्निंग में कीजिए। तो आपको जब ड्यूरिंग द ट्रेड फाइल आप इंपोर्ट करोगे तो कुछ नया स्क्रिप्ट लॉन्च हुआ रहेगा तो आपको एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। बराबर, वही वही, क्योंकि सारे एक्सचेंज पोर्टल के फाइल वो मतलब एक्स्ट्रानेट में मतलब 6:30 वगैरह को मिल जाते हैं शाम को। बराबर बराबर। तो आपको
या फिर रात को करो या मॉर्निंग को करो। मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग क्यों मैं प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता रहेगा कि हम लोग होल्डिंग भी अपडेट करते हैं, पता है? अगर आप सीडीएसएल डिपॉजिट पार्टिसिपेंट हो तो वहां से एक होल्डिंग फाइल आती है, या एनएसडीएल के है तो वहां पर एक होल्डिंग आती है। तो वो होल्डिंग फाइल क्या करते हैं, हम लोग सिस्टम में अपडेट करते हैं। अगर आपका स्क्रिप्ट मास्टर अपडेट हो गया रहेगा और हम होल्डिंग अपडेट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि वो मेरा होल्डिंग स्क्रिप्ट कोड के साथ अपडेट हो जाएगा। नहीं तो क्या हो गया मालूम है, सिस्टम के अंदर सिर्फ आइजन कोड के साथ अपडेट होगा। और जैसे अपडेट होगा और नहीं रहेगा तो मेरा पेन का प्रोसेस थोड़ा डिले हो सकता है। बराबर है? बट इसमें मॉर्निंग में कितने बजे अपडेट करना है जो आप बोल रहे हो, मतलब टाइमिंग में? हेलो देखो, जैसे अभी गौरव भाई ने बताया कि ये स्क्रिप्ट मास्टर अवेलेबल है T-1 में, तो आप रात को भी अवेलेबल कर सकते, अपलोड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, रात को 7, 7:30, 8 बजे कभी भी, या फिर मॉर्निंग में आप 9 बजे अपडेट कर लो, तो मेरा स्क्रिप्ट मास्टर अपडेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि सेटलमेंट टीम वाले अगर होल्डिंग अपलोड करेंगे मॉर्निंग को, तो उनका वो अपडेट हो जाएगा। ठीक, कभी कोई नई स्क्रिप्ट रिस्टोर होती है ना, जैसे कि आज कोई स्क्रिप्ट रिस्टोर हो गई, एग्जांपल के तो उसका है डेटा मुझे प्रीवियस डे शाम को ही आ जाता है, तो वो मैं शाम को ही कर दूं, मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग को कर दूं। हाँ नहीं शाम को ही कर देंगे, वो बेटर है। ठीक है, वो प्रोसेस आपको मेंटेन करना है कि मुझे कभी अपडेट करना है, राइट? ओके ओके हाँ राइट। तो ये स्क्रिप्ट मास्टर में अपडेट करूंगा, और उसके अंदर भी आपको सबसे पहले क्या अपडेट करना है, क्या है, मुझे सबसे पहले करनी है बीएससी की स्क्रिप्ट मास्टर अपडेट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एग्जांपल है कि जैसे मैं बीएससी का स्क्रिप्ट मास्टर अपलोड करूंगा, स्क्रिप्ट फाइल script.txt जो फाइल अवेलेबल है, वो जैसे मैं सिस्टम के अंदर अपलोड करूंगा, तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, बीएससी का स्क्रिप्ट कोड है, जहां पर देखो ये सेकंड कॉलम जो है, एक सेकंड, एक मिनट, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे सिस्टम के अंदर बीएससी का स्क्रिप्ट मास्टर अपडेट करूंगा। जैसे ही बीएससी का स्क्रिप्ट मास्टर अपडेट करूंगा ना, ये क्या करेगा, बीएससी का जो script.txt के अंदर जो कोड है वो अपडेट करेगा, उसके साथ उसका यहाँ पर आईएसएन कोड भी अपडेट हो जाएगा। देखो INE 002 A01018 जो स्क्रिप्ट मास्टर में अवेलेबल है, राइट? उसके बाद मैं क्या करूंगा, एनएससी का जो एनएनएफ फाइल है ना, वो मैं अपडेट करूंगा। अभी एनएनएफ फाइल के अंदर भी क्या रहेगा, सिम आईएसएन कोड रहेगा और उसके साथ उसका सिंबल रहेगा, बराबर है? तो ये मैंने अपडेट कर दिया सिस्टम के अंदर, और मेरा बेस जो मैंने बताया बीएससी का स्क्रिप्ट कोड मेरा बेस है, वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यानी फॉर बीएससी जो जिसका स्क्रिप्ट कोड 500325 है, और एनएससी जहां पर रिलायंस एज अ सिंबल है, वो दोनों के लिए बीएससी का स्क्रिप्ट कोड यानी ई फॉर इक्विटी 500325 वो मेरा बेस रेडी हो जाएगा। यानी मैं सिस्टम के अंदर मैं कोई भी एंट्री करता हूँ, मोस्टली ट्रेड में ऐड कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे स्क्रिप्ट कोड बीएससी का जो है, जिसके आगे हम लोग ई फॉर इक्विटी का लगा देंगे, 500325 हम लोग यूज करेंगे, बराबर है? यानी कंपलसरी आपको सिस्टम में, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं एक्सरसाइज करूंगा ना अपलोड का, तब मैं बताऊंगा कि कौन सा फाइल आपको कभी यूज करना है, बराबर है? लेकिन बीएससी का पहले और बाद में एनएससी का। अभी मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ स्क्रिप्ट मास्टर के अंदर। अभी आप सबको पता रहेगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर वहां पर बहुत सारी सीरीज में काम हो रहा है, बराबर है? जैसे कि मैं रिलायंस ही पकड़ता हूँ, तो रिलायंस के अंदर आज की तारीख में मई की एक्सपायरी में भी काम हो रहा है, और जून की एक्सपायरी में काम हो रहा है, और जुलाई की एक्सपायरी में काम हो रहा है। अच्छा, उसके अंदर अलग अलग कॉल या पुट में भी काम हो रहा है। तो जैसे जैसे आपका अलग अलग सीरीज में काम हो रहा है, तो हम लोग ये सीरीज भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन करेंगे। वो कैसे करेंगे, एनएससी के अंदर एक फाइल आती है CN01 जो आप सबको पता रहेगा, तो हम वो CN01 फाइल अपलोड करके सिस्टम के अंदर वो सीरीज ओपन कर देंगे। एट द सेम टाइम कभी कभी क्या होता है मालूम है, ये CN01 यूज करेंगे कि लॉट चेंजेस होता है,
या फिर कोई नई स्क्रिप्ट आ गई, F&O के अंदर कोई नई स्क्रिप्ट आ गई, से पहले वो स्क्रिप्ट सिर्फ कैश मार्केट में थी, अब आज से या स्पेसिफिक डे से वो स्क्रिप्ट F&O में आ गई, तो हम लोग CN01 करके फाइल आती है वो यूज करेंगे, वो CN01 यूज करेंगे टू अपडेट न्यू स्क्रिप्ट इन F&O सेगमेंट। अगर ऐड सपोज हम ये जो नई स्क्रिप्ट ऐड हुई या ऑलरेडी जो स्क्रिप्ट फीचर और ऑप्शन में ऐड है, ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर आज लॉट चेंजेस आ गया, तो वो CN01 हम लोग लॉट चेंजेस के लिए भी यूज करेंगे। और बट नेचुरल कोई नई सीरीज में मेरा काम हो रहा है तो वो हम लोग सीरीज भी ऑटोमेटिक ऐड कर देंगे, राइट। तो ये CN01 फाइल जो है हम लोग यूज करेंगे कोई न्यू स्क्रिप्ट F&O में ऐड हो रही है या फिर उसका लॉट चेंजेस हो रहा है या फिर नई सब सीरीज में मेरा काम वो सीरीज ऐड करने के लिए। तो ये सब स्क्रिप्ट मास्टर मुझे डेली बेसिस पे मैं अपडेट करूंगा तो मेरा स्क्रिप्ट मास्टर भी बराबर परफेक्टली अपडेट हो जाएगा। ओके, अभी मैं एक मिनट, नाउ व्हाट चार्जेस चार्ज मास्टर, एनी मास्टर इज मींस गौरव, कोई चार्ज मास्टर अरे मास्टर बाकी है? No, हम्म, no. Charge master, all charge master, we will explain it. अकाउंट ये कैलेंडर मास्टर इज एक्सप्लेन। किसी को कुछ क्वेरी है रिगार्डिंग दिस मास्टर्स? कोई क्वेरी? ये जो आप सेटलमेंट मास्टर में एक बार जाइए ना, सॉरी, सेटलमेंट मास्टर में एक बार जाइए ना, सेटलमेंट मास्टर, ओके। उसमें कैलेंडर मास्टर मतलब हॉलीडे का जो रहता है वो मतलब मंथली अपडेट करना है कैसे, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है उसका? सुनो, पूरा साल का मैंने रेडी करके रखा है। देखो यहाँ पर है ना, 1 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक तो मैंने रेडी करके रखा है, बराबर है? ओके। यहाँ पर आपको अपडेट क्या करना है, सिर्फ हॉलीडे अपडेट करना है, राइट। जैसे कि वो कैलेंडर आता है ना NSE और BSE का, तो हमारा खुद का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के अंदर वो हॉलीडे डिफाइन कर दो और वो सिस्टम के अंदर अपलोड करेंगे ना तो वो हॉलीडे मास्टर यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, राइट। अच्छा, आपका फॉर्मेट है बेसिकली? हाँ, मेरा खुद का एक फॉर्मेट है, वो आपको मैं शेयर करूंगा बाद में, आपको दिखाऊंगा। ओके तो ओके। इस सबसे अगर आप सिस्टम के अंदर डाल देंगे ना तो क्या हो गया, मेरा हॉलीडे मास्टर भी आप एडवांस में डाल सकते हो। उससे इम्पैक्ट क्या होगा कि सपोज नॉर्मली ये F&O में काम में आता है कि मैं बिल जनरेट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट या बिल जनरेट करूंगा, तो उसका क्लोजिंग प्राइस का जो इम्पैक्ट आएगा प्रीवियस नेक्स्ट डे के लिए, वो इम्पैक्ट यहाँ पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बराबर है? ओके ओके। हाँ, तो अच्छा, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। संदीप भाई, गणेश बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो गणेश भाई। ये अपना महीने के शुरुआत में कौन कौन से फाइल, मतलब वो सेटलमेंट कैलेंडर के बारे में तो अभी सुना, लेकिन दूसरा भी कोई एक फाइल रहता है ना जो महीने के शुरुआत में अंदर लेनी पड़ती है सॉफ्टवेयर में? हाँ, मैं आपको इंपोर्ट वाला ऑप्शन भी बता दूं, बराबर? इंपोर्ट वाला ऑप्शन बताता हूँ अभी। मैं वही, मैंने आपको पहले तो मास्टर बता दिया कि कौन सा मास्टर हमें डेली बेसिस पे ये मेरा सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, राइट। अभी कौन सा मास्टर आपको अपडेट करना है। एग्जांपल कि मैं इंपोर्ट के अंदर जाता हूं और इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट ट्रेड अदर के अंदर, राइट, जो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में मुझे अपडेट करने का सबसे पहले सेटलमेंट मास्टर, राइट। जैसे कि मई महीने के लिए मैंने क्या किया, C_STC करके एक फाइल आती है जो आप सबको मालूम है, वो फाइल मैं सिस्टम के अंदर में अपलोड कर दूंगा। अपलोड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा मई महीने के लिए मेरा सेटलमेंट मास्टर सिस्टम के अंदर अपलोड हो जाएगा। एट द सेम टाइम मैं सिलेक्ट करूंगा BSE के अंदर, BSE के अंदर मैं सेम ऑप्शन चूज करूंगा SETT यानी सेटलमेंट मास्टर। वहां पर SETL मास्क करके फाइल आती है एक्स्ट्रा नेट पे,
वो मैं अपलोड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा बीएससी के अंदर भी सेटलमेंट मास्टर क्रिएट हो जाएगा, जो मुझे कहां पर दिखेगा, मास्टर के अंदर, सेटलमेंट मास्टर के अंदर, सेटलमेंट मास्टर, राइट। यहाँ पर मैं अगर मैं डेट डिफाइन करूंगा कि सपोज 1 अप्रैल से लेकर के सपोज मुझे 30 अप्रैल तक चूज करना है, तो मैं 30 अप्रैल तक चूज करूंगा, सिलेक्ट करूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पर पूरा अप्रैल मेरे का क्या मास्टर है मुझे यहाँ पर पता लग जाएगा। मैंने यहाँ पर एनएससी सिलेक्ट कर दिया और रिफ्रेश का बटन दबा दिया, तो देखो ये मेरा एनएससी का स्क्रिप्ट मास्टर आ गया। कौन सी तारीख से, अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, राइट। मेरे पास मई महीने का मास्टर है, लेकिन मुझे सेटिंग करना है। हाँ तो सर एक मिनट, मैं इंपोर्ट में जाता हूँ, मैं आपको है ना हाँ एक मिनट, मैं आपको सेटलमेंट मास्टर मेरे पास मई महीने का अवेलेबल है, मैं आपको अवेलेबल इंपोर्ट करके बता देता हूँ, बराबर है ना। हाँ तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, एक बार एनएससी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया सेटलमेंट। तो सर देखो मैंने सेटलमेंट सिलेक्ट किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं फाइल सिलेक्ट करता हूँ जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तेजी से देखो CSTC करके फाइल आती है, सी मतलब कैश मार्केट का, ऊपर हाँ। मैंने फाइल सिलेक्ट कर ली, अभी मैं उसको इंपोर्ट का बटन दबाता हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट का बटन दबाऊंगा ना, तो मई महीने के लिए मुझे जो सेटलमेंट मास्टर का जो फाइल आता है आया है वो मैं सिस्टम के अंदर, मेरा यहाँ पर सिस्टम में कुछ 5 डिफाइन करना पड़ेगा। एक मिनट, अच्छा ये नहीं है, एक मिनट। ओके देखो ये मेरा एनएससी का सेटलमेंट मास्टर यहाँ पर ओपन हो गया। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर ऊपर बीएससी सिलेक्ट करता हूँ और बीएससी का भी अगर मैं सेम ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ SETT, हाँ सेटल मास्क करके फाइल है, तो क्या फाइल का नाम आ गया और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँ। सबको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? यस हाँ ये मेरा बीएससी का भी स्क्रीन सर मई महीने के लिए अपलोड हो गया। सॉरी सेटलमेंट मास्टर। हाँ अभी मैं यहाँ पर मेरे पास सेटलमेंट मास्टर का ऑप्शन खुला है। यहाँ पर मैं अगर मई महीना सिलेक्ट करता हूँ 1 मई से लेकर के 31 मई फॉर एनएससी और रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पर ये ओपन हो गया, राइट। ये जो ओपन हुआ वो अलग अलग सेटलमेंट टाइप जो एक्सचेंज में अवेलेबल है ना, ऑक्शन, फिर क्लोज आउट, फिर रोलिंग, ट्रेड फॉर ट्रेड, और अभी T+1 जो शुरू हुआ वो उसके अंदर T+1 के अंदर भी रोलिंग और ट्रेड फॉर ट्रेड। और यहाँ पर अगर मैं बीएससी सिलेक्ट करता हूँ तो बीएससी के लिए भी आपको यहाँ पर ऑक्शन और अलग अलग जो मार्केट टाइप है उसके लिए यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसकी स्टार्ट डेट अगर मैं यहाँ पर रोलिंग सिलेक्ट करता हूँ तो उसका सेटलमेंट कोड क्या है बीएससी के अंदर 2223 करके उसका सेटलमेंट नंबर आता है। उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट और बिल डेट, जो डेट में मेरी पोस्टिंग होती है, और उसका ड्यू कभी होने वाला है फॉर फंड्स एज वेल एज फॉर सिक्योरिटी, ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आपको सिस्टम के अंदर मैन्युअली सेटलमेंट मास्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो बिगिनिंग में महीने में आता है वो आप एक बार सिस्टम के अंदर अपलोड करके रख दो, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, हेलो हाँ बोलो भास्कर भाई, આમાં ક્લિયરિંગ હોલિડેઝ અને સેટલમેન્ટ હોલિડેઝ ને ઇમ્પેક્ટ આવી જશે? ના એ તો હોલિડે We will get the impact of clearing holiday and settlement holiday.
क्योंकि ट्रेडिंग हॉलीडे रहता है, कभी कभी ट्रेडिंग चालू रहता है, सेटलमेंट नहीं होता है। हाँ, नहीं मनोज भाई ये इंपोर्ट करो ऊपर से। ये नहीं, मैन्युअली करो ऊपर से। तो આપણું છે ને એક ફોર્મેટ છે મનોજ ભાઈ, मेरा एक फॉर्मेट अवेलेबल है, वो फॉर्मेट में शेयर करूंगा इंपोर्ट ट्रेड अदर के अंदर, राइट। जैसे मैं यहाँ पर एनएससी बीएससी सिलेक्ट करता हूँ, राइट। आपका जो इम्पैक्ट है, जैसे मैंने बताया ना हॉलीडे, वो फाइल में यहाँ पर मेरा सीएसवी बनाऊंगा या हॉलीडे सेट, और यानी अभी कभी कभी क्या होता है मालूम है, कभी कभी सेटलमेंट हॉलीडे रहता है, लेकिन कभी कभी दोनों हॉलीडे रहता है, तो मेरा दोनों ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग है, राइट। अगर आपका कभी ट्रेडिंग हॉलीडे भी रहता है और सेटलमेंट हॉलीडे भी रहता है, तो मैं ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करूंगा, हॉलीडे वाला, राइट। इसके अंदर आपको पता लगेगा मुझे यहाँ पर डालना है कि कौन सी डेट, कौन सा बी कोड, यानी जैसे इंग्लिश मैंने बताया ना, कौन सा सेगमेंट एक्सचेंज और डिस्क्रिप्शन, राइट। तो वो मैं एक बार सीएसवी रेडी करूंगा ना, खाली 3 कॉलम, अगर ये मैं रेडी करूंगा और अपडेट करूंगा तो वो अपडेट हो जाएगा। और सपोज मुझे सिर्फ सेटलमेंट हॉलीडे डालना है तो भी सेम फॉर्मेट है, लेकिन उसका ऑप्शंस हमने अलग अलग बना के रखा है, बराबर है ना। तो ये दोनों अलग अलग ऑप्शन यूज करके मैं सिस्टम के अंदर अपडेट कर सकता हूँ। पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपको मालूम है हॉलीडे आ जाता है ना, तो मैं क्या करूंगा, हाँ, उसका तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही आप लोग सेटलमेंट, जो ये हॉलीडे सेटलमेंट है उसका फाइल अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा अपडेट, राइट। हाँ हाँ बराबर नहीं नहीं, लेकिन उसके बाद हम लोग सेटलमेंट इंपोर्ट करेंगे तो उसका वो इंपोर्ट निकल नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो सेटलमेंट का टेबल अलग है और ये हॉलीडे टेबल अलग है। हेलो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं सेटलमेंट मास्टर में जाता हूँ ना, टेबल अलग है और ये कैलेंडर मास्टर। सपोज मैंने पूरा साल का डाल दिया और ये मैं मंथ वाइज डालता हूँ और ये मैं पूरा साल का में डाल दूँ, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ओके। हेलो आशीष भाई। हेलो, हाँ बोल। हाँ, एफएनओ में सेटलमेंट मास्टर अपलोड करने का फैसिलिटी अवेलेबल है क्या? सेटलमेंट मास्टर किसका? एफएनओ, एनएससी एफएनओ। किधर सेटलमेंट होता है? एफएनओ में कहाँ से? तो पूरे साल का ही रहता है ना सर। एफएनओ में तो हेलो, एफएनओ के अंदर सेटलमेंट मास्टर में अगर आप जाएंगे ना, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर एफएनओ है, मुझे तो खाली लाइन लिखने का है। हेलो, पूरा अप्रैल, पूरा साल का मुझे लाइन लिखना है, वही मेरा सेटलमेंट मास्टर हो गया। सर देखो, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी सब में सेटलमेंट नहीं रहता है। ये बाय डिफॉल्ट हम लोग सिस्टम में हम लोग ये 1 ईयर का एक कैलेंडर बना देते हैं। ये मेरा कैलेंडर है और कुछ नहीं है। ओके, मतलब ये सब डेट वाइज ही चलता है अपना। यस, वहां पर ट्रांजैक्शन डेट वाइज। ओके ओके, ठीक है, डन, थैंक यू। बाकी क्या भी है ना, सुनो, आज की तारीख में है ना, कैश मार्केट में भी पूरा फंडा डेट के ऊपर ही जाता है। खाली सेटलमेंट नंबर हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंट करने के लिए। क्यों प्रिंट करते हैं? क्योंकि क्लाइंट को हिसाब से पे इन और पे आउट करने का रहता है। या फिर हम लोग सेटलमेंट, जो सेटलमेंट टीम जो सेटलमेंट करती है ना, उनके लिए सेटलमेंट नंबर इज रिक्वायर्ड। बाकी पूरी दुनिया कैश और एफओ के अंदर भी पूरी डेट के ऊपर ही चल रही है, बराबर है ना। तो मेरा ये एक पूरा पीरियड है, पूरा साल का, ये डिफाइन करने का रहता है। बाकी कुछ मुझे डिफाइन नहीं करने है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली वहां पर अगर हॉलीडे है तो हॉलीडे डालना बहुत कंपलसरी और बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी अपलोड ऑप्शन बताया। हम लोग यहाँ पर है ना, अभी किसी को कुछ क्वेरी है यहाँ पर? ये 2 मास्टर तो आपने एक्सप्लेन किए, बट ये ट्रेड बुक मास्टर और ये बताया क्या आपने? मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। क्या है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेड बुक मास्टर है, देखो अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। एनएससी के अंदर कितनी कितनी मार्केट टाइप है? एक तो रोलिंग प्लस ट्रेड फॉर ट्रेड। कभी हमने ओएफएस में भी पार्टिसिपेट किया, बायबैक में शेयर भी सरेंडर कर दिया। फिर एफ&ओ का जो फिजिकल डिलीवरी होता है वो भी हमने वहां पर कर दिया। फिर गोल्ड बॉन्ड भी है। तो एक ही सेगमेंट, यानी सेगमेंट मेरा कौन सा है एनएससी के अंदर? एग्जांपल कैश मार्केट का सेगमेंट है, और वो कैश मार्केट के सेगमेंट के अंदर वहां पर अलग अलग मेरी सेटलमेंट टाइप है। हम लोग उसको अलग अलग सेटलमेंट टाइप बोलते हैं। यहाँ पर देखो, आपने देखा रहेगा कि ये कॉलम है सेटलमेंट टाइप, ए फॉर ऑप्शन, फिर दूसरा है क्लोज आउट टाइप, फिर तीसरा मेरा आता है रोलिंग का,
R फॉर रोलिंग, T फॉर ट्रेड। अभी एक नया सेटलमेंट टाइप शुरू हो गया जो T+1 में यूज करेंगे, राइट। M जो उन्होंने दिया हुआ है, प्लस Z वो भी अगेन उन्होंने दिया है। तो ये जितनी भी सेटलमेंट टाइप है वो हम लोग सिस्टम के अंदर डिफाइन करते हैं। लेकिन ये टाइप है ना, इसके लिए हमारा खुद का एक कोडिंग है, हम उसको बोलते हैं बुक कोड। हम लोग क्या करेंगे, ये बुक कोड नॉर्मली यूज करते हैं अलग अलग सेटलमेंट टाइप के लिए। जैसे ऑप्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, AUC, लेकिन आगे मैंने क्या लगा दिया, N। तो N स्टैंड्स फॉर NSC, फॉर अलग अलग N stand for NSC, okay. N फॉर NSC। हाँ, ओके। ये जो बुक कोड बनाया ना आपने, हमने बुक हमारा रेडीमेड है। हाँ, उसका खाली लिस्ट शेयर कर देना, वो किसके लिए यूज होता है बाद में आराम से। हाँ, तो ये मैं वही आपको बता रहा हूँ कि NSC के अंदर बुक कोड यूज करूंगा NAUC। अगर क्लोज आउट रहेगा तो CLO। अगर सपोज आपका जो F&O फिजिकल है उसके लिए मैं अगर मुझे यूज करना है तो मैं NFDR करके यूज करूंगा, और रोलिंग के लिए राइट। तो अलग अलग मैं बुक यूज करूंगा अलग अलग पर्पस के लिए, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ पर अलग अलग रखा है। हेलो, any एक मिनट म्यूट करेगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो आपको पता रहेगा, मालूम है NSC के अंदर रोलिंग और ट्रेड फॉर ट्रेड में अलग अलग सीरीज में भी काम होता है। NSC की मैं बात करता हूँ, EQ, N1, N2, N5 जितनी भी अलग अलग सीरीज होते हैं जो ट्रेड फाइल में आपको आती है, मालूम है। तो वो सीरीज के ऊपर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ट्रेड मेरा कहाँ पर जाने वाला है, रोलिंग में जाने वाला है या फिर ट्रेड फॉर ट्रेड में जाने वाला है, बराबर है ना। तो वो सीरीज भी हमने यहाँ पर सिस्टम के अंदर यहाँ पर डाल के रखा हुआ है, बराबर है। तो ये ट्रेड बुक हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, यहाँ पर आपको जाकर के खाली व्यू करना है, बाकी वहां पर कुछ भी एडिटिंग करना नहीं। एट द सेम टाइम अगर आप BSC सेलेक्ट करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखो जो मेरा नॉमेनक्लेचर जो N था ना NSC के लिए फर्स्ट वन, वो यहाँ पर B से रिप्लेस हो गया है। यानी ये मैं नॉमेनक्लेचर B वाला यूज करूंगा BSC के लिए फॉर अलग अलग सेटलमेंट टाइप। ओके, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर भी देखो बहुत सारी सीरीज है BSC के अंदर, जो मैं सीरीज में जो मैं अपने उसमें आती है, अपना स्क्रिप्ट मास्टर के अंदर आती है, राइट। और रोलिंग ट्रेड फॉर ट्रेड में भी आप सबको पता रहेगा कि TZ या Z सीरीज या DT, XT, ST अलग अलग सीरीज आती है। तो वो सीरीज के ऊपर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ट्रेड मेरा कहाँ, तो ये मेरा NSC और के लिए ट्रेड बुक है। F&O के लिए हम लोग ट्रेड बुक यूज करेंगे सिंगल NFNO, राइट। क्यों? क्योंकि NSC के लिए अगर BSC रहेगा तो उसका नॉमेनक्लेचर चेंज होएगा, आगे सिर्फ B करके आ जाएगा, BFNO। तो ये आपको सिस्टम के अंदर मैन्युअली या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ट्रेड फाइल या कुछ भी मास्टर अपलोड करेंगे तो सिस्टम के अंदर ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, बराबर है ना। ओके, अभी और कुछ क्वेरी है जो मैंने एक्सप्लेन किया आज? और आई थिंक वो एक लास्ट वाला क्या था, वो ये तो आपने लास्ट वाला एक ऑप्शन था ना इसमें, CCB, ये भी हमारा इंटरनल पर्पस के लिए। देखो अभी ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, कट करना, हेलो, ये हम लोग है ना, ये भी मैं किसके लिए यूज करता हूँ कि जैसे आज की तारीख में मार्केट में दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, एक NCL है और एक ICCL है, बराबर है। अभी आपका ट्रेड में कैश मार्केट की बात करता हूँ या F&O की बात करता हूँ कि सपोज आपने NCL चूज किया हुआ है, यानी आप खाली ट्रेड करते हो NSE और BSE में, बाकी का जितने भी एक्टिविटी है यानी आपका अकाउंटिंग पोर्शन जो करती है कौन करती है, कोई भी एक CC करती है, आइदर NCL करेगी या फिर ICCL करेगी। अगर अच्छा अभी आप सपोज आपने NCL चूज किया है तो 3:30 बजे तक आपका दोनों एक्शन में काम होगा, लेकिन 3:30 बजे के बाद जो कुछ भी एक्टिविटी होगी वो सिर्फ NCL के साथ आपकी होगी। आपको रिपोर्टिंग भी सिर्फ NCL को करना है,
आपका अकाउंटिंग यानी पे इन पे आउट जो ऑप्शन है वो भी आपको एनसीएल के साथ करने का है, बराबर है। तो यहाँ पर हमने डाल के रखा है कि आपका कौन सा सीसी एक्टिव है, राइट। ये हम यूज करेंगे बिलिंग पर्पस के लिए, कि जैसे आपका ट्रेड अपलोड हो गया, ट्रेड अपलोड होने के बाद मैं उसका बिलिंग कोई भी एक ही जगह पे बनाऊंगा, आइदर एनसीएल में या फिर यानी एनएससी में बनाऊंगा, या अगर आपने आईसीएल चूज किया है तो मैं उसका बिलिंग बीएससी में बनाऊंगा। तो वो सब मेरा प्रोग्राम का इंटरनल कोडिंग है, इसके लिए हमने यहाँ पर उसको सीसी भी बुक करके डाला। ये जब आपके उधर जब हम लोग प्रोग्राम लोड करेंगे या जिसके उधर भी सॉफ्टवेयर लोड करके रखा है, वो हम एडवांस में उनको पूछ के ये पूरा पैरामीटर्स करके रखते हैं। यहाँ पर आपको जाकर के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेंसिटिव है। यहाँ पर गए और आपने गलती से कुछ भी ट्रायल एरर कर दिया तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, उसका बिलिंग पे आएगा, उसका अकाउंटिंग पे आएगा, उसका रिपोर्टिंग पे आएगा, तो वो सब पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। ये हमारे पर्पस के लिए कि क्लाइंट का आज की तारीख में कौन सा सीसी एक्टिव है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, आज के दिन में हम लोग यहाँ पर थोड़ा टर्मिनेट करेंगे, राइट। और कल मॉर्निंग को 11 बजे वापस हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मास्टर से ही। अभी मैं कल आपको मॉर्निंग में बताऊंगा कि जो एक्सचेंज जो स्क्रिप्ट मास्टर आती है और बाकी का जो फाइलें जो आती है वो हम लोग सिस्टम के अंदर अपलोड करके कहाँ हम उसको व्यू कर सकेंगे, जो मुझे डेली एक्टिविटी में अलग अलग प्रोसेस में हमको यूज करने, जैसे कि वार कट हेयर कट फाइल है, फिर अप्रूव्ड फाइल है, फिर अपना क्लोजिंग प्राइस है और स्क्रिप्ट मास्टर, वो हम सिस्टम के अंदर अपलोड करेंगे। और आपको उसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो मैं आपको कल मॉर्निंग को 11 बजे जब वापस दोबारा मिलेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सेम मीटिंग आईडी रहेगा। और अच्छा हाँ, और आपका ये मीटिंग आईडी जो है ना, जो मैंने शेयर किया था ना, वो सेम मीटिंग आईडी कल मॉर्निंग को भी यही रहेगा, बराबर है। ओके सर, एक रिक्वेस्ट है सर, ये अटेंडेंस का आप लेते हैं ना, तो आप वो 10:30 स्टार्ट करेंगे क्या, फिर 10:45 को स्टार्ट करते हैं? हाँ सॉरी, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था 10:30 को आप अटेंडेंस स्टार्ट कर दीजिए, तो 15 मिनट अटेंडेंस के लिए जाएंगे, और 10:45 को आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे और 12:15 तक खत्म कर देंगे रोज, तो अच्छा रहेगा। हाँ वो करेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं जस्ट था कि अटेंडेंस मतलब नीलेश भाई ने क्या बताया था आज मॉर्निंग को कि अगर ज्वाइन हो रहे हैं ना आप पार्टिसिपेंट, तो अगर आप स्पेसिफिक नाम करके करेंगे ना, वो डाल देंगे। वो आज कैसा हुआ, हम लोग बोर्ड मीटिंग से ज्वाइन किए थे तो वो पता नहीं था मुझे। चलेगा, कोई इशू नहीं है, बाय नेम ओनली। ओके, हाँ मतलब वैसे ही करेंगे, बट 10:45 को अगर स्टार्ट कर देंगे और 12:15 तक खत्म कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। या नो इशू राइट, या ओके, या because for this special training, like I have revised all meeting timings to at 12:30. That's the reason this is a request. No issue. Yeah. Okay. Thank you. Thanks everyone. Thanks. और ये रिकॉर्डिंग्स भी सर हमें शेयर कर देना। हाँ करेंगे, शेयर कर देंगे। Yeah, please. Yeah.